S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone. Do you know differential equations can give you solution of circuits, Newton's law of cooling? If you have studied in your 12th class, then you must be knowing how much differential equations are useful. You can even check the heat flow by using differential equations, but you should be knowing the solutions of a differential equation. So in this lecture, I will be just briefing you what is a differential equation. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. Welcome to S. Chand Academy. If you want to study this topic in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The e-book link is given in the description box. So let's start with differential equations. Order and degree, I will brief first. So differential equation. What is a differential equation? An equation of the form, definition, an equation having derivatives is called differential equation. Let's say this is dy by dx plus y is equal to x. So this equation has derivative. But now a derivative can be of any order, and how you just define order and degree of a differential equation. So differential equation means it should have derivatives. So this is differential equation, very basic example it is. So this is an example and very basic one. After that you should be knowing degree and order of differential equation. What do you mean by order of a differential equation? Order means आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हैं, कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव आपकी इक्वेशन में है, that gives you the order of the differential equation. I am writing now different differential equation and you just check. This I am writing. This is also differential equation. You can see this has derivatives, but just check which highest order derivative you have. So second derivative is the highest one. So it means the order of this order of this differential equation is 2. This is how you define or find order of differential equation. Now after order, degree of differential equation that you should be learning. So degree of differential equation. अब डिग्री क्या होती है, आप ये देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना ऊपर वाली, आई एम जस्ट नाउ राइटिंग डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. So this is differential equation. You can see highest order derivative is third order. So it means order is 3 and जो आपका highest derivative है ना उसकी पावर आप चेक करो. पावर चेक कर रहे हो, कितनी पावर है इसकी? इट इज 3. सो दैट गिव्स यू द डिग्री आंसर. इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज ऑर्डर, और डिग्री का मीनिंग है उसकी कितनी पावर है. आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलेबस में अभी जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें लीनियर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस करोगे. इट मीन्स आपकी जो इक्वेशंस है ना उनकी डिग्री होगी 1. ठीक है. So linear differential equation जो है that will be just learning और उन्हीं के solution पे focus करेंगे. So you just check now. Linear differential equation का meaning है order 1 and degree 1. So linear का जो combination है that is basically with the degree. तो degree अगर आपकी 1 है you will say कि वो linear differential equation है. सबसे पहला जो topic है उसको start करते हैं, that is exact differential equation. अब exact क्या होती है?
एग्जैक्ट का मीनिंग है द फॉर्म mdx plus ndy equal to 0 is said to be. So let's start with exact differential equation. This is our first topic. The form mdx plus ndy equal to 0 is said to be exact. This is differential equation and first degree you can see derivative or degree is 1 is said to be exact if, अब आप यहाँ पे देखो del m by del y should be equal to del n by del x. अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीन इक्वेशंस जो आपने लीनियर, होमोजीनियस और सेपरेबल 12th क्लास में लर्न की हैं. दिस इज अनदर फॉर्म विच यू विल बी लर्निंग इन हेयर. सो दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. अगर आपके पास ये डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स सेम आते हैं, आप बोलते हो कि वो एग्जैक्ट है, देन अगर आपको पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट है तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे. और यहाँ पे ना वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके जो एम एन एंड है ना वो दोनों फंक्शंस हैं, फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी डन, दोनों फंक्शंस हैं एक्स एंड वाई के. ठीक है, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात आई है. जैसे ही आपके जो वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा होता है, आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हो. सो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स अगर आपके पास आए, यू विल से कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट डिग्री वाली वो एग्जैक्ट हो जाएगी. फिर आपके पास आप उसका सोल्यूशन निकालोगे. मेन फोकस है सोल्यूशन ओनली. आप m को कम्प्लीटली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन n में से वो टर्म्स रिमूव करेंगे जिनके साथ x है. सो आई एम राइटिंग n नेगेशन x, और जो बचेगा उसको आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल राइट दिस c. c इज कांस्टेंट. यानी पहले आपने चेक किया कि वो एग्जैक्ट है, और जैसे ही आपके पास एग्जैक्ट आ गई आपने सीधा इस फॉर्मूला से आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो नाउ वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. सो एंड यू कैन सी m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं और n का x के रिस्पेक्ट में. दिस इज गुड फॉर लर्निंग और मेमोराइजिंग. नाउ वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. Find solution of 2x minus y plus 1 is dx, then dy equal to 0, 2y minus x minus 1. So this is very first example on exact differential equations. अब आप देखो मैंने जो फॉर्म लिखी थी, मेरा m जो है वो x dx के साथ था और n मेरा dy के साथ है. तो दिस इज कम्प्लीटली दैट फॉर्म. तो आप इसको पहले चेक करोगे. देर आर अदर वेज ऑल्सो, बट अभी मैं आपको एग्जैक्ट मेथड हम लर्न कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, नाउ m को आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली, और n को x के रिस्पेक्ट में. चेक करते हैं कि क्या आता है. m इज दिस कंप्लीट टर्म इज योर m. योर m इज दिस. अब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे. वी हैव ऑलरेडी लर्न पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो क्या डेरिवेटिव आ रहा है, -1. यहाँ पे दिस इज माई n, ये मेरा n है और ये m. अब आप n को x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये भी -1. यू कैन सी कि del m बाय del y is equal to del n by del x. It means ये इक्वेशन जो है, this implies this is an exact differential equation. अब अगर आपको पता है कि ये एग्जैक्ट है, कैसे निकालोगे. Therefore the solution is given by, कैसे बताया आपको कि जो आपका m है उसको कम्प्लीटली x के रिस्पेक्ट में, कंप्लीट m, कोई उसमें डिलीशन नहीं करना है आपको. m को कम्प्लीटली n के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए और n में से x वाली टर्म रिमूव करेंगे और इक्वल टू कांस्टेंट. दिस c इज अ कांस्टेंट. अब आपके पास m क्या था, योर m वाज 2x माइनस y प्लस 1, और अब n में से x की टर्म्स रिमूव करोगे, आपके पास क्या बचेगा, सिंपली 2y माइनस 1. x आपने रिमूव कर दी टर्म्स. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आई जस्ट राइट n अगेन, और मैं आपको
अब यहाँ पे आप देखो कि आपकी जो टर्म्स हैं 2y, दिस वाज योर n। अब x किस टर्म में है? सिर्फ इस टर्म में है ना, आप इसको रिमूव कर दो, इसको डिलीट कर दो और जो रेस्ट बचा है आप उसको कंसिडर करते हो। n नेगेशन x का ये मीनिंग है। अब नाउ सिर्फ आप इंटीग्रेट करोगे एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। इट मीन्स सिर्फ आपको पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है एंड यू विल इजीली गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में भी यू विल अप्लाई द रूल कि आपको इंटीग्रेट करिए। सो इंटीग्रेशन विल बी x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाय 2 और y इज अ कांस्टेंट, सो y विल बी कांस्टेंट एंड 1 का इंटीग्रेशन इज x, देन 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे सो यू विल गेट 2y स्क्वायर बाय 2 बिकॉज y का इंटीग्रेशन क्या होता है y स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस y इक्वल टू c। Just simplify it and get the answer. So final solution आपके पास। So differential equations are very useful, चाहे आप heat flow की बात करो, circuits की बात करो, orthogonal trajectory की बात करो, very important topic and you should be learning how to solve differential equations. So this is one example on exact differential equations. I'll be taking 2 more examples after the break. वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं हूं आदित्य और आप लगातार मेरे साथ सीख रहे हैं जूलॉजी को। अब तक के पिछले वीडियोस में हम जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के हाइलाइट्स कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस में हमने फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस में टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की थी। जल्दी ही आपको मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के वीडियोस जिसमें आप समझ पाएंगे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं और आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज बेसिक मेटाबॉलिज्म की बात की गई है। उन सारे वीडियोस को हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। Welcome back to S Chand Academy. So we were doing exact differential equations. One example I have already taken. Now few more examples we'll be taking. So next example is x4 minus 2xy square plus y4 dx equal to 2x square y minus 4xy cube plus y sin y dy. Now this is not in basically proper form but you have to be very careful. So proper form was m dx plus n dy. ये exact की फॉर्म है जो आपको कंसिडर करनी है। अब आप देखो ये dx है, दिस इज फाइन, सो इट मीन्स ये आपका m है। लेकिन आप देखो इस बार आपकी ये वाली टर्म उस तरफ है लेकिन n dy आपका LHS में होना चाहिए। इट मीन्स पहले आप इसको रीराइट करोगे इक्वेशन को। सो रीराइट करिए। सो x4 माइनस 2x, बिकॉज एक सिंगल नेगेटिव साइन भी आपके कैलकुलेशन को बिल्कुल डिफर करेगा। सो एक सिंगल नेगेटिव साइन ऑल्सो मैटर्स। सो पहले आपने इसको रीराइट किया। आफ्टर रीराइटिंग नाउ यू कंपेयर कि m क्या है आपका और n क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी व्हाट इज m, व्हाट इज, सो ये आपका कंप्लीटली m है और ये कंप्लीटली आपका n है। सो m की वैल्यू क्या है? माई m इज, दिस टाइम इट इज बिग and n is minus, negative is important, so your n is this. क्या करेंगे? फिर से पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे और m का आप रिवर्स जाते हो। रिवर्स का मीनिंग है m आपका dx के साथ है लेकिन आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव फॉर चेकिंग y के रिस्पेक्ट में लेते हो। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब, बिकॉज ओनली y के रिस्पेक्ट में दिस विल बी 0। नाउ n का डेरिवेटिव चेक करते हैं। n का विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दिस नेगेटिव इज इम्पॉर्टेंट। जब आप x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो आपको क्या मिलेगा? 4xy माइनस
this is with respect to x now, so 4x then minus 4y cube, this will be 0 because we are just differentiating with respect to x. अब आप माइनस ओपन करो एंड जस्ट चेक कि दोनों सेम है या नहीं है. इन केस सेम नहीं है, वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व सच डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट जहाँ पे सेम आएगा पहले हम वो लर्न कर रहे हैं. देखो आप दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आप, दिस इम्प्लाइज कि आपका डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के सेम है. इट मीन्स दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और जैसे ही आपको पता चल जाए एग्जैक्ट है, सो बहुत इजीली आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो. और वो सोल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर द सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन लिखेंगे इस, इट मीन्स देखो ये जो आपका m था ना, इसको कंप्लीटली आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे. सो 2x वाई स्क्वायर प्लस y4 एंड n में से पहले x की टर्म्स रिमूव करेंगे. अब यहाँ पे देखो इट इज बिग ना, लेकिन देखो यहाँ पे x है, n है ये आपका, और इसमें भी x है. इट मीन्स आप इन टर्म्स को लोगे ही नहीं, आप यहाँ पे n नेगेशन x लिखते हो सिंपली, और ये नेगेटिव साइन आप नहीं मिस करोगे. सो माइनस साइन y dy इक्वल टू द कांस्टेंट. फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन के लिए भी आपका सेम रूल रहेगा. इट मीन्स यहाँ पे आप y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और वहाँ पे कोई x की टर्म आपको कभी मिलेगी नहीं, बिकॉज आप यहाँ पे n नेगेशन x लेते हो. सो देयर इज नो इशू दैट साइड. बट यहाँ पे y आपका है, लेकिन y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे. सो x4 का इंटीग्रेशन इज, पावर ऐड करते हो आप नीचे और उस पावर को नीचे मेंशन करते हो फॉर इंटीग्रेशन. देन माइनस 2x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2. y स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, उसको आप एज इट इज राइट करोगे. सो दिस इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस y4 इज अ कांस्टेंट, सिंपली x मेंशन किया आपने, एंड साइन y का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस y. सो ये आपके पास, थोड़ा सा इसको अरेंज करिए, एंड योर सोल्यूशन इज दिस cos y इक्वल टू, और ये c आपका कांस्टेंट है. ये जब आप आपके पास इनिशियल कंडीशंस होती हैं, देन यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ सच कांस्टेंट्स. ये कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप इसको c ही राइट करोगे, यू विल नॉट राइट एनीथिंग एल्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. Taking one more example, and you can see I am taking first order, first degree differential equations when I am checking exactness. और exact के लिए it means आपके पास equation first order, first degree. कई बार बच्चों को confusion होता है कि कौन से question में ये method लगाना है. तो very clear it is कि आपको first order, first degree equations में अगर ये condition satisfy हो रही है, तभी आप इसको apply करोगे. So moving and taking one more example now. So, and how you will get the question? Solve the differential equation. Only this will be you getting in your equation. And your differential equation is 1 by y minus 2 by x dx plus minus x by y square plus 3 by y dy equal to 0. So this is third illustration based on exact differential equations. So now again, what is m and what is n? Very first thing to figure out is m and n. What is m? Very clear. जो भी आपका dx के साथ है, मैंने उसको m लेट किया है, and जो भी मेरा n के साथ dy के साथ है, that is my n. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, रिवर्स वे जाओगे. सो डेल एम बाय एम को आप y के रिस्पेक्ट में करोगे और n को x के रिस्पेक्ट में. अगर सेम आए देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस सोल्यूशन पार्ट. अगर नहीं आता है देन
we have other methods to solve such differential equations. क्या आएगा डेरिवेटिव अब आप y के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, so y this will be 0 and this will be -1 upon y square. अब यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में जब आप लेते हो, so what will be your derivative? x के रिस्पेक्ट में this is x upon y square. So x का derivative 1 and you are getting, so you can easily see this will be 0. You can easily see दोनों के दोनों सेम आ गए and this is third example on exact differential equation. सेम आने के बाद आपको क्या करना है? You have to just differentiate. So this is an exact differential equation. Therefore, the solution is, अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्यूशन आप कैसे राइट करोगे? द सेम वे, द सोल्यूशन इज गिवन बाय कंप्लीटली m को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और n में से x रिमूव करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड इक्वल टू c. अब आपका m क्या था? इट वाज 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x एंड योर n was, अब यहाँ पे देखो n में से आपको सिर्फ वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं हो. सो x इसमें है और 3/y आपकी टर्म बचेगी एंड dy. तो दोनों सेम आ गए एंड वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दी, फाइनली जस्ट इंटीग्रेट एंड कीपिंग y कांस्टेंट. अब आप y को कांस्टेंट रख रहे हो तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? 1/y इज कांस्टेंट एंड 1 का इंटीग्रेशन इज x ओनली. 2 1/x इंटीग्रेशन इज log x. 3 upon y 3 and 1 upon y इंटीग्रेशन इज log y इक्वल टू c. सो x by y एंड इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इस पावर को आप ऊपर ले जा सकते हो. This basically, this is the property and negative sign even you can balance here, and log of y, this power also take up, and x by y log m plus log n property, that is अंदर multiplication हो जाएगी. So y cube and x to the power minus 2. So you can write it y cube upon x square equal to c. So finally this is the solution and you can see, you can simplify the solution as much as you want to, but this is just perfect now. This is the solution for this question. So till now we have learned differential equation, order of differential equation, then degree of differential equation and special type of differential equation, that is exact differential equation. If you know that the equation is exact, how to find the solution, that we have learned in this lecture. So we have learned exact differential equation and its solution. लेकिन अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है then we have 5 methods कि उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो एग्जैक्ट में. सो वो पॉसिबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. इन दिस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न एग्जैक्ट इक्वेशन एंड ऑर्डर, डिग्री and the solution of exact differential equation. If you want to study basic theory of linear differential equations, please refer to the book by S. Chand Publishing. The e-book link is given in the description box. Don't forget to share, like and subscribe S. Chand Academy. Don't forget to press the bell icon for the future updates. Stay connected. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.